Here you have to click on power on this virtual machine. Okay, click over this and start the ISO file which is available. Okay, here you can see you have got this window. This window will come when your ISO file will be selected and VMware will be booted using the ISO. Okay, you have to press enter here. After pressing enter, you have two options available. One is start our ethical hacking workshop, or you can go to your computer as well in case you are using the bootable live DVD. Okay, clear? So we will move into our ethical hacking workshop. It is a customized Ubuntu distribution in which I have incorporated all the tools which are required during our workshop. Okay, we'll try to create maximum codes whichever is possible in the in these duration for the 2 days. We'll try to write some codes. In case जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, you can practice attack your end as well. Okay, let's see. So what you have to do, just press enter and move into the workshop. कितने लोग पहुंच गए यहाँ तक? VMware इंस्टॉल हो गया? नहीं हुआ? इंस्टॉल कर लो. अच्छा, पेन ड्राइव, यू आर वेटिंग फॉर द पेन ड्राइव. हाँ, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है बताओ. एंड्रॉइड की क्यों चिंता कर रहे हो? जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही ध्यान रखो. इतनी भी लेट नहीं आया हो यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुई. क्या करना है तुम्हें इसमें? बस आ गया, स्टार्ट करो इसे. ISO फाइल DVD से सेलेक्ट करो. ठीक है, okay. So what you can do, the first thing is, here are the screen sizes available जिस पे हम इसे यूज करना चाहेंगे to view this. Here is the option to scale the screen size to the maximum. Okay, use this so that you all can see this properly. आप लोग अपने सिस्टम पे भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. Let's boot into our ethical hacking workshop. Okay, फिर पहुंच गए आप लोग यहाँ तक, जो लोग DVD से यूज कर रहे हैं.
Sorry, I'll just reboot the system. Okay, so you'll land up here. Start हो गया? सभी लोगों का? How many? Raise your hands. नहीं, जिनके पेन ड्राइव्स नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है? इशू है? क्या इशू है? कुछ आ रहा है? ये विंडो आ गया ना? इसके बाद कुछ और भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। ये आ गया ना? इससे एक्स्ट्रा कुछ आया, एक्स्ट्रा मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेना, उसको रख लेना, ठीक है? क्लियर हो गया? स्टार्ट हो गया? हाँ, एक्सटेंशन चाहिए अभी रुक जाओ, बंद तो नहीं हो जाएगा? हाँ, बंद है, अच्छी बात है, उसको लेट डाउन कर दो, फील फ्री। ओके, ठीक है? क्लियर? So let's see. First of all, what I'm doing, I'm getting the IP address of Windows 8 system. To do this, what we have to do, we have to go to our Start button. कितने लोग Windows 7 यूज कर रहे हैं? कितने लोग Windows 8? Very nice. चलो ठीक है, मेरे पास शेल बटन है, बाकी आप लोगों को अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो प्रेस द विंडो की एंड टाइप इन CMD। यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल, क्या करना है मुझे, प्रेस विंडो की। विंडो की जानते हो ना आप लोग, सब लोग? कोई ऐसा है जो विंडो की नहीं जानता? कीबोर्ड में ऑन द बॉटम लेफ्ट देयर इज अ की जिसके ऊपर विंडो का साइन बना हुआ है, आपको उसे प्रेस करना है। प्रेस विंडो की। विंडो की प्रेस करने के बाद टाइप cmd.exe। ओके, आफ्टर दिस प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। दिस इज अ शॉर्ट कोड फॉर रन एज एडमिन। ठीक है, cmd.exe के बाद क्या काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अ कमांड प्रॉम्प्ट विल बी ओपन। क्लियर विद द, लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। मैंने cmd टाइप किया, cmd.exe,
press Ctrl Shift Enter over this. It is asking, do you want to run it as administrator? Yes. A command prompt is open. Now to find out, पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ इसको. Right click over it, properties, layout 999. Clear? अब दिख रहा है सबको properly? So what we have to do? You have to type in ipconfig. Okay? What it will do? It is a IP configuration command. Using this, we can detect what is the correct IP address of our system. Press enter. We have got multiple interfaces through which we are connected to internet. Because I am using the Wi-Fi, I will search for my wireless adapter inside all the available adapters inside my system. To do this, here you have my wireless LAN adapter Wi-Fi. Okay. Here I have the IP address as 192.168.1.5. This is the physical IP address of my computer system for D-Link interface. Okay, because I am connected to D-Link using Wi-Fi. Okay, how many of you have reached to this position? कितने लोग आ गए? ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, IP एड्रेस निकालना आ गया, समझ में आ गया. अब इसके साथ में we have one more virtual adapter for VMware. Okay, and it is known as VMware 8, VMnet 8. ये है मेरे पास. It is the Ethernet adapter VMnet 8. Do you know what Ethernet is? What is the difference between an Ethernet and a wireless? Ethernet is a wired network and wireless is a without wire. Simple. Okay. So VMware, which means our virtual machine software and Windows computer system, is connected using a virtual Ethernet network with the name VMnet 8. Okay, and the IP address of my system on Ethernet based VMnet 8 network is 192.168.192.1. I will write both the IPs. Okay, because we need the correct IP address to connect two systems. Clear? अभी इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैं अभी क्लियर करूंगा, आप लोगों को बेटर समझ में आए इसलिए पहले ये चीज़ें बता रहा हूँ. ठीक है, देखो तो क्या करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे एंटर किया, जो मेरा D-Link का IP है इट इज़ 192.168.1. क्या था 2.5 था. यस 1.5. और जो मेरा VMnet 8 है इसका है 192.168.192.1. क्लियर? ठीक बात है. Now this toolkit is running inside VMware. Okay, so this is connected to Windows 8 using Ethernet. VMnet 8 इसके थ्रू कनेक्टेड है. कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मेरा जो Linux का toolkit है it is connected to my Windows 8 computer using the Ethernet VMnet 8 network. Okay, so I have to find out the IP address of my toolkit. Okay, so for this I have to type in the command का नाम है ifconfig. How I am going to execute this? Let's see. नोट कर लिया ये आपने? नोट कर लिया इतना? Let's see क्या करना पड़ेगा. I am moving to my virtual machine where my toolkit is running. क्लिक किया मैंने इसे.
I have to open the terminal. Here you can see there is a terminal. Okay, this terminal is equivalent to command prompt in Windows. Clear? जैसा Windows में command prompt होता है वैसा Linux में terminal होता है. ठीक है, तो मुझे IP एड्रेस पता करना है. IP एड्रेस पता करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ifconfig. दिख रहा है सबको? और should I increase the size? थोड़ा सा इंक्रीज करूँ क्या? थोड़ा सा कर लेता हूँ यार, ताकि आप लोगों को ना बाकी कमांड्स भी दिखाई देंगे. एडिट, प्रोफाइल प्रेफरेंसेस, आई गेस दिस इज फाइन. ठीक है, ifconfig किया, जस्ट प्रेस एंटर एंड आई हैव गॉट 2 इंटरफेसेस. जैसा कि मैंने जब विंडोज का ओपन किया था तो आई वॉज गेटिंग द ईथरनेट विद द नेम VMNet 8, बट इनसाइड माई Linux सिस्टम द ईथरनेट इंटरफेस इज नोन एज ETH. ओके, एंड 0 इज द नंबर बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग. Say if I have 3 Ethernet systems connected and I have 3 Ethernet ports on my system, I would have got ETH0, ETH1, ETH2. Okay, so 0, 1, 2, 3 depends on the priority of the Ethernet adapter available inside your computer system. Okay, so for this I am using ETH0. This denotes Ethernet connectivity on my system, and the IP address is inside this INET address. Okay, INET address denotes the IP address of my system, and it is 192.168.192.138. Okay, we will be noting this system and then we will understand why both of these are connected to each other. Okay, देखो, तो I am moving to my notepad directory. यहाँ तक सबने कर लिया? सबको अपना अपना IP एड्रेस पता चल गया? नोट कर लिया आपने अपना ये वाला IP एड्रेस? सबके अलग अलग होंगे. जो थर्ड पार्ट है वो सबका अलग अलग होगा. ठीक है ना? दिस मीन्स इट इज 192.168.x.y. ठीक है, x कैन बी एनीथिंग एंड y कैन बी एनीथिंग फॉर एवरीवन. क्लियर? लेट्स सी. यस, तुमने तो लाइव चला रखे ना, तुम तो 1.5 में होगे, 1.7, 1.8 कुछ होगा. ठीक है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू D-Link. आई विल टेल दिस, अभी मैं बताऊंगा क्या. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या अच्छाई है. क्लियर हो गई बात? देखो, लेट्स सी. सो नाउ व्हाट वी हैव टू गो फॉर. हियर आई विल टाइप द IP एड्रेस ऑफ माय दिस सिस्टम इज 192.168. क्या है IP एड्रेस? 192.138. क्लियर? अब देखो सिमिलैरिटी क्या है. मैंने आपसे ये कहा कि मेरा टूल किट मेरे विंडोज 8 सिस्टम के थ्रू ईथरनेट अडेप्टर से कनेक्टेड है. क्लियर? इसका मतलब ये है कि इनका जो सब डोमेन है, दिस द थर्ड फील्ड ऑफ द IP एड्रेस मस्ट बी सेम. इफ द थर्ड फील्ड, which means the first field, the second field and the third field must be same for 2 devices to remain inside a network where they can connect to each other. Clear? And this is happened due to the subnet masking available. Okay, अभी मैं बताऊंगा उसे भी क्या इशू है. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि VMNet 8 और ये दोनों एक ही इंटरफेस पे हैं, इसीलिए मेरा Linux सिस्टम और मेरा Windows 8 सिस्टम कनेक्टेड है आपस में. क्लियर? If I want to ping to this IP address from my system, it will not connect. Why? Because क्योंकि उसका अडेप्टर अलग है और उसका सब डोमेन, दिस थर्ड फील्ड इज नोन एज सब डोमेन माना है इसको, क्योंकि मैं इसे सब डोमेन बोलूंगा तो आप समझ जाना. दिस इज द सब डोमेन एंड दिस इज द एड्रेस. ओके, ड्यूरिंग द वर्कशॉप आई विल बी यूजिंग ओनली दीज 2 नेम्स. मैं इतना पूरा नहीं बोलूंगा 192.168, ऐसा नहीं बोलूंगा. मैं सिंपल बोलूंगा 192.1 से कनेक्ट कर लो, या 192.5 से कनेक्ट कर लो, या 1.8 से कनेक्ट कर लो, इस तरीके. ठीक है, पहला का 192.168 is same for everyone here. Clear? Even if we are using the VMware or even if we are using the direct D-Link to connect our systems. Okay?
नाउ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जो लोग लाइव यूज कर रहे हैं और जो लोग डीलिंग से कनेक्टेड हैं, दे कैन कनेक्ट टू मी यूजिंग दिस डोमेन. ओके, दैट इज वाई जो लोग लाइव यूज कर रहे हैं उनका सब डोमेन होगा लास्ट वाला 1. क्लियर? और जो लोग VMware यूज कर रहे हैं उनका डिफरेंट होगा. इट मे बी एनीथिंग ऑन दिस प्लेस बिटवीन 1 to 255, बट इट मस्ट बी सेम inside my VMware as well as in my Windows 8 system. Clear? ये जो थर्ड पार्ट है सब डोमेन, this must be same to maintain the connectivity between the VMware image and the dedicated system जो हम यूज कर रहे हैं. उसमें 10.10 करके आती है नेट की नेटवर्किंग. कोई बात नहीं, उसमें जब आप नीचे सर्च करोगे तो IP कॉन्फ़िग विंडोज 8 में करोगे या 7 में, तो उसमें वर्चुअल बॉक्सर दिखा देगा 10.10 एंड द थर्ड पार्ट विल बी सेम. और जो लास्ट वाली एड्रेस होगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ द सिस्टम, फॉर विंडोज 8 एज वेल एज फॉर योर इंस्टॉल्ड वर्चुअल बॉक्स. ठीक है? यू हैव टू सी दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फील्ड शुड बी सेम इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू सिस्टम्स. ओके, नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी तो ये मैंने कहा कि कनेक्टेड है. हाउ डू वी चेक इफ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड? ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड है. दैट इज वाई आई प्रेफर टू लेट यू नो. बहुत लोग जानते हैं, 90% जानते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे. इट इज फॉर देयर इंफॉर्मेशन टू चेक इफ systems are connected, and जो बेसिक कमांड है उसका नाम है पिंग. ठीक है? पिंग एंड द IP एड्रेस. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर यूज्ड दिस पिंग कमांड? कितने लोगों ने यूज किया है? ओके, कितने लोगों ने नहीं किया है? ओके, कुछ लोग ऐसे हैं किया भी है और नहीं भी किया है. यार सच सच बताया करो, मिस हो जाएगी बात वाली. ठीक है? 2 दिन के वर्कशॉप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारे और आपस में सच की बातें चल रही होंगी. ठीक है? ओके, तो देखो क्या करना है. नाउ एज आई सेड दैट माय कंप्यूटर सिस्टम टूलकिट इज कनेक्टेड टू माय विंडोज 8 ऑन VMnet 8 बेस्ड IP एड्रेस. ठीक है? तो मैं जब उसे पिंग करूंगा तो उसका पिंग का मुझको रिप्लाई मिलेगा. बट इन केस मैं अगर 1.5 वाले IP एड्रेस को पिंग करूंगा तो आई विल नॉट गेट द रिस्पॉन्स, बिकॉज इवन though I am connected to my Windows 7 system, but I am not connected using that adapter, okay, which is my D-Link adapter. मैं उसके थ्रू नहीं कनेक्टेड हूँ, मैं Ethernet के थ्रू कनेक्टेड हूँ. तो only then I can ping to that system and I can get a reply. Let's see. जो डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है, देखो सबसे पहले to check if Windows 8 can connect to toolkit. पहले ये चेक करूंगा. इसमें करूंगा पिंग 192.168.192.138 फ्रॉम विंडोज सिस्टम. ठीक है? ये करूंगा, लिख देता हूं आगे ऑन विंडोज 8. और इसके बाद में चेक करूंगा टू चेक if toolkit can connect to Windows 8. Okay, I will do ping 192.168.192.1 on toolkit. ये सारी कमांड लिखते रहना क्योंकि सेम ऐसी की ही ऐसी आपसे पूछी जाएगी कोड में टेस्ट. ठीक है? क्लियर हो गई बात? ये मैं भी चेक करूंगा. करूं चेक? चलो लेट्स सी. आई एम मूविंग टू माय डेमोन्स्ट्रेशन टूलकिट. सेलेक्टेड दिस. आई डिड क्लियर. तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? विंडोज 8 से चेक करना है. आई हैव ओपन माय कमांड प्रॉम्प्ट. आई हैव डन द CLS कमांड. CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर द स्क्रीन. ओके, क्या करना है मुझे? आई एम चेकिंग पिंग 192.168.192. आ जाओ प्लीज़ व्योम, आ जाओ जल्दी आ जाओ. 138 यही था मेरा. क्लियर? सबको मालूम है व्योम का रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी. ठीक है?
I have pinged this. तो क्या मिला मुझे? I have got a reply from 192.138. This denotes that my system Windows 7 is connected to my toolkit, and when I am sending an echo request to it, it is sending me back the response. पहले मैं आपको ping के बारे में बता दूं, ये ping क्या है? Ping is an ICMP request, ठीक है? ICMP पैकेट जाता है इसके अंदर, ping के अंदर होंगे, ठीक है? That ICMP packet contains an echo request, okay? It goes to the system, it says knock knock. If the system is available, he will give the reply, and the reply is known as ICMP echo response or ICMP echo reply. ECHO कहते हैं इसे, echo request and echo response. I'll just type this on this. So the methodology is Win8 will send an ICMP. Who can tell me the full form of ICMP? Raise your hands. Raise your hands. Yes. Internet Control Messaging Protocol. Please have. ठीक है? Windows 8 will send an ICMP, stands for Internet Control Messaging Protocol. Clear? ICMP echo request to the toolkit system. If toolkit system is up and running, it will send back an ICMP echo response. अप एंड रनिंग का मतलब है पावर ऑन होना चाहिए, ठीक है, और कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट से. क्लियर? प्लीज नोट दिस. सो दिस इज द मेथोडोलॉजी यूज्ड इनसाइड द पिंग कमांड. पिंग में हम एक ICMP रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स अगर मिल गया मुझे, कनेक्टेड है, आई विल गेट द ICMP रिस्पॉन्स बैक. ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ इट इज क्लियर, हैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. हैकिंग का दूसरा नाम है किसी भी चीज को सबसे आसान तरीके से करना, ठीक है? द शॉर्टेस्ट वे टू डू अ थिंग इज नोन एज हैकिंग. क्लियर? तो इसलिए जितना हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा, उतनी ही बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को. There is a single concept in every technology of networking, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो TCP/IP पैकेट बेस्ड हो, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वो इथरनेट हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो. The technology is same, only the naming convention and the protocol is a bit different. किसी में encryption आगे होता है, किसी में पीछे होता है, but जो basic concept है, it is always same. एक बार समझ में आ गया, जिंदगी के सारे काम क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? देखो, नोट कर दिया इसे. कुछ पूछ रहे थे आप? उसमें क्या है? रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट. विंडोज से टूलकिट की तरफ किया है. वर्चुअल बॉक्स में लाइव सीरीज से चला रखा है. मैं चेक कर लेता हूँ. आपको भी नोट करो.
वर्चुअल बॉक्स यूज कर, तुम तो लाइव चला रहे थे ना, वर्चुअल बॉक्स से लाइव यूज कर रहे थे, ISO यूज कर रहे थे, क्या आ रहा है और उसमें कितना आ रहा है, CMD में क्या आ रहा है, IP एड्रेस बताओ तुम्हारे में VMware है नहीं है ना, तो VMware ये वर्चुअल बॉक्स की नेटवर्किंग ओपन सोर्स होती है, उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोगों को VMware दिया है, ठीक है। VMware चलाओ, इंस्टॉल करो और उसके थ्रू चलाओ, और बीच में क्लास में मुझे डिस्टर्ब मत करो, और भाई थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है। सुनो, क्लियर हो गया ये, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइम आउट आ रहा है किसमें, CMD में कौन सा IP डाला था, हाँ 138 डाला, क्यों तुम्हारे उसमें क्या है, टूलकिट का IP एड्रेस तो चेक करो पहले, IF config से किया वो चेक, हाँ क्या है वो, क्या है बताओ बताओ, 6448, हाँ तो उस पर करो ना, 138 पे करोगे तो कैसे आएगा, एक बार पिंग कर देते तो फिर सिस्टम कंटिन्यूअसली भेजता रहता है उसको, वो जब तुम लिनक्स से भेजोगे उसमें, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल डिफाइंड स्टॉप है, करने का कुछ प्रोसेस कंट्रोल C हो गया, कर दिया, करो, देखो क्लियर, नाउ लेट्स सी, मिल गया, समझ में आ गया तुम्हें अरविंद कुमार, हो गया, आने लग गया रिप्लाई, अभी टाइम आउट तो नहीं आ रहा, सच बताना एकदम, ठीक है, देखो क्लियर, समझ गए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी गॉट दिस दैट आवर सिस्टम इज कनेक्टेड, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर सिस्टम शुड बी कनेक्टेड इन बैकवर्ड जर्नल, कि जैसे मान लो मैंने बैकट्रैक को कनेक्ट किया, बैकट्रैक ओपन था, उसने रिप्लाई कर दिया, इन केस आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू माई विंडोज सिस्टम और वहाँ से मुझे रिप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो दोनों सेम डोमेन पे हैं, दोनों सिस्टम चल रहे हैं, तो शायद विंडोज सिस्टम से पहले कोई फायरवॉल होगी जो उसे ब्लॉक कर रही होगी पिंग रिक्वेस्ट को। तो इफ इन योर सिस्टम अगर पिंग नहीं आता है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना फायरवॉल डिसेबल कर देना, मैं भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। कमांड लाइन भी मेथड बताऊंगा और ग्राफिकल भी बताऊंगा ताकि आप लोग इजीली कर सको। देखो आई एम डूइंग दिस पिंग 192.168.132.192.1, ये किसका IP एड्रेस है, Windows 8 का, clear to everyone? I am trying this and I am getting the reply. I did Control C. I have used CTRL plus C, Control C to quit the ping command. ठीक है, नोट कर लो इसको। मैं आपको पहले बता दूं इसका मतलब क्या है। It is sending a 64 bytes ICMP packet from the IP एड्रेस, यहाँ से हमें रिप्लाई आ रहा है, जो ICMP रिस्पॉन्स है उसका साइज है 64 बाइट्स, ओके। सीक्वेंस नंबर 1 2 3, ओके। पहला पैकेट गया, दूसरा गया, फिर तीसरा आया, चौथा, पांचवा, दिस विल बी इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, ओके। उसके बाद में वी हैव टाइम टू लिव, TTL। टाइम टू लिव कैन बी थॉट ऑफ एज अ पैकेट। इसके अंदर जो वैल्यू होता है इट डिनोट्स द नंबर ऑफ राउटर्स समटाइम्स, ओके। नंबर ऑफ राउटर का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, एक सिस्टम, और मुझे पीछे लास्ट में मिस्टर धर को एक मैसेज भेजना है, ठीक है, क्या गुड नेम, रंजन, मुझे रंजन को एक मैसेज भेजना है। आई कैनॉट थ्रो माई मैसेज डायरेक्टली टू हिम, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैसेज भेजने के लिए आई नीड टू यूज अ स्पेसिफिक रूट। वो रूट क्या चीज़ है भाई, मैंने इंटरनेट खरीदा था MTNL वालों से, MTNL ने मुझे इंटरनेट दे दिया, ठीक है। ये भाई साहब है MTNL, ये कौन है, हाथ उठाओ MTNL, हाथ उठाओ हाथ, इनका ये MTNL के मालिक हैं, जो जिनके फ़ोन नहीं चलते ना वो इनसे बात करना। तो MTNL ने मुझे इंटरनेट दिया,
अब मुझे कोई सा भी पैकेट भेजना है तो मैंने यहाँ से पहले MTNL को भेजा, ठीक है। मैं डायरेक्टली रंजन को नहीं भेज सकता, मुझे पहले MTNL को भेजना पड़ेगा। MTNL ने जहाँ से इंटरनेट दिया वो उसे भेजेगा। Everything will go to a central gateway. That gateway will forward it to the next coming router, and following the router by router, depending on the sequence address and the destination address, my message will reach to Mr. Ranjan. ठीक है, क्लियर। अब ये जो पैकेट है इसकी उम्र होगी ना, मान लो इंसान, भगवान इंसान बना के भेजता, अगर हम लोग मरते नहीं तो भीड़ बढ़ती जाती है ना, क्लियर। तो हमारा TTL क्या है, किसी का 40 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 60 साल है, किसी का 100 साल भी है, ठीक है। और इसका TTL कितना है 64। तो इट विल मैक्सिमम गो टू 64 राउटर्स एंड इट विल डिसॉल्व और इट विल गेट डिफ्यूज और इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। वरना पैकेट क्या करेंगे, रास्तों में ही घूमते रहेंगे राउटर में। तो अननेसेसरी पैकेट अगर रास्ते में घूमता रहेगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी ना फिर कनेक्टिविटी करने में। तो व्हेनेवर अ पैकेट इज स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम राउटर्स इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, क्लियर है। तो ये टाइम टू लिव इट कैन बी two values, either it can be number of routers or it can be a time interval in seconds, clear है, ठीक है। यहाँ पे ये राउटर है, ये जो 64 डिनोट कर रहा है it is denoting the router. After crossing 64 routers it will be closed, ठीक है। मैक्सिमम 64 राउटर तक ये जाएगा and this TTL value can be changed, हम इसे चेंज कर सकते हैं। It is directly changed by the internet service providers and the routers available in between, which have set up the communication medium between the both. Okay, ठीक है, clear है। देखो, तो हमारा काम अभी इसकी TTL चेंज करना नहीं है, सिर्फ एक बेसिक समझ के लिए I'm understanding it. Then we have a time, कितनी देर में मुझे रिस्पॉन्स मिला। पहला पैकेट 1.4 माइक्रोसेकंड में आ गया, दूसरा 0.77 माइक्रोसेकंड में आ गया, तीसरा और कम में आ गया, है ना, यानी कम्युनिकेशन फास्ट। पहला वाला लेट क्यों आया, बिकॉज ICMP का पूरा ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होता है। सेंड किया हेलो, वहाँ से आया एक्नॉलेजमेंट, फिर यहाँ से भेजा सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये TCP पैकेट तो नहीं है, ये ICMP पैकेट, ठीक है। ICMP पैकेट का जो प्रोटोकॉल है, you have to read this and you can understand this in a better way. So the good news is my two systems are connected. कितने लोग हैं आपके वाले जो टूलकिट से विंडोज सिस्टम को जब आप पिंग कर रहे हो तो नहीं कनेक्ट हो रहा है, जिनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा, हाथ बड़ा सा खड़ा करो जिन लोगों का नहीं आ रहा। सबको मिल रहा है रिप्लाई, सच सच बताओ, क्या रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जब टूलकिट से विंडोज को कर रहे हो? मिल रहा है, तुम्हारा मिल रहा है, अच्छा इनका मिल रहा है, तुम्हारा नहीं मिल रहा, अच्छा और किसका नहीं मिल रहा? तो मैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखो, क्योंकि सिस्टम में, विंडोज सिस्टम में बाय डिफॉल्ट फायरवॉल ऑन होती है, इस वजह से वो पिंग को डिनाई करता है कि किसी को ये ना पता चले कि मैं सुन रहा हूँ। मैं किसी को पैकेट भेजूँ तो वो चला जाए, लेकिन कोई मुझे भेजे तो उसे नहीं पता चले। इट इज अ सिक्योरिटी precaution, okay? So for this what we have to do to understand the concepts in a better way, first we will disable this firewall and we will understand how things are being connected, okay? To do this what we have to do, सबसे पहले मैं अपने सिस्टम का firewall ऑन करूँगा, ठीक है? The demonstration is turn on and off the Windows firewall, okay? Linux में टूलकिट में बाय डिफॉल्ट देयर इज नो फायरवॉल, वी हैव टू इनेबल इट इन केस वी वांट, या लेकिन विंडोज में होती है बाय डिफॉल्ट ऑन, तो वी हैव टू टर्न इट ऑफ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न ऑन। आई विल बी यूजिंग टू मेथड्स, द GUI मेथड एंड द CMD मेथड, ओके। दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप हैकिंग करोगे तो आपको शेल मिलेगी, तो जितना ज़्यादा आप कमांड से यूज टू हो उतनी ही बेटर तरीके से आप किसी भी दूसरे सिस्टम को नचनिया की तरह नचा सकते हो, ठीक है, क्लियर। देखो देखो
लेट्स सी। तो GUI मेथड में आई नीड टू एक्सेस अ फाइल नोन एज firewall.cpl, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस firewall.cpl, वी हैव टू गो टू रन पे जाके firewall.cpl रन चलाने के लिए देयर इज़ अ स्मॉल थिंग विन की प्लस आर। अगर आप विन की प्लस आर करोगे तो रन चल जाएगा और रन के अंदर जाके firewall.cpl चला दो, ठीक है। क्लियर है बात? नोट कर लिया सबने? स्टार्ट करूं? देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना विंडोज प्लस आर की दबाई, एक रन की विंडो आ गई मेरे पास, दिख रहा है सबको? विंडो आर दबाया, रन विंडो आ गई। अब इसके अंदर क्या लिखना है, firewall.cpl, ठीक है। और क्या करना है, एंटर और ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स प्रेस ओके। ओके प्रेस किया और आ गई मेरी फायरवॉल। हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हियर वी हैव द ऑप्शन टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। मैंने इसे क्लिक किया। अब इसमें क्या लिखा है, टर्न ऑन विंडोज फायरवॉल। इसमें इसने ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शंस नहीं कर रखे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो ये ऑप्शन है कि आपकी फायरवॉल ऑन है और ब्लॉक नहीं कर रही है। दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल ऑन है और सारे कनेक्शंस को ब्लॉक कर रही है। और तीसरा ऑप्शन है कि फायरवॉल आपकी ऑफ है, ठीक है। तो जब ब्लॉक कर रही होगी तो या तो हमें यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो हम फायरवॉल को ऑफ कर देंगे। तो पहले मैंने इसे ब्लॉक किया है एंड आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट माई पिंग रिक्वेस्ट। मैंने इसे ओके किया। आई वांट टू चेक इफ माई सिस्टम इज स्टिल एबल टू पिंग दिस सिस्टम और नॉट। क्लियर? तो मैंने क्या किया, पिंग दिस एंड नाउ व्हेन आई पिंग्ड ऑन द सेम सिस्टम 192.1 आई एम नॉट रिसीविंग द रिप्लाई। So this doesn't mean that my system is not available. It is available, but there is a firewall protecting my system. Okay, clear? So first of all, what I have to do, either I have to enable the connections or I have to stop the firewall. So my thing is, what I am doing, I am stopping the firewall now. ठीक है? स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई गो टू टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन एंड ऑफ। आई विल क्लिक हियर, टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल एंड टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल। क्लियर? अब इसमें दो चीज़ें, एक पब्लिक नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क इज द वन विच इज कनेक्टेड इनसाइड अवर VMware और मेरे डीलिंग के थ्रू, एंड पब्लिक नेटवर्क इज लाइक इफ आई एम एक्सेसिंग गूगल और इफ आई एम एक्सेसिंग Facebook, okay? In case they are trying to connect me back or if they want to ping me and I have disabled this, so they will be allowed to connect to me. My firewall will not protect, okay? In case I enable this, so I can do all my demonstrations inside my network, but nobody from outside can come and ping me. Clear? It is fine enough? Let's see. मैंने टर्न ऑफ कर दिया फायरवॉल, ओके किया। जैसे ही ओके किया, इसका एक नोटिफिकेशन है, द कलर चेंज टू रेड एंड रेड इज अ थ्रेड साइन, इज अ साइन ऑफ थ्रेड। रेड इज द साइन ऑफ थ्रेड, ठीक है। ये पेपर में आएगा ये सवाल, रेड इज द साइन ऑफ। देखते हैं आप लोग क्या जवाब दोगे। देखो, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया और इसे अब जाके टेस्ट किया। क्लियर? CLEAR, क्लियर इज अ कमांड टू क्लियर द स्क्रीन इनसाइड Linux, ठीक है। नोट कर लीजिए। एंटर किया, क्लियर हो गया। मैंने इसे पिंग किया 192.168.192.1, एंटर किया एंड नाउ माय रिप्लाई हैज अगेन स्टार्ट किया। अभी सिनेरियो क्या है, मेरा फायरवॉल बंद है, इसीलिए नेटवर्किंग हो रही। तो दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपके दो सिस्टम एक ही इंटरनेट पे या एक ही वायरलेस मीडियम पे होने चाहिए, उन दोनों का सब डोमेन सेम होना चाहिए। यू कैन चेक द कनेक्टिविटी यूजिंग पिंग कमांड। इन केस यू कैनॉट पिंग, you cannot receive the IP reply, it doesn't mean that it is not connected. There may be a firewall available which you need to turn it
off, okay, for demonstration. Or you need to allow the connections. Clear, fine. So this is how. And in Linux, ये automatically stop नहीं होगा. To stop this, we have to use Control C. ठीक है? ये एक बेसिक नेटवर्किंग सेटअप है. आई गेस अब सभी लोगों के सिस्टम अब तक सेटअप हो गए होंगे. एक दो तुम्हारा नहीं हुआ. तुम लाइव चला लो. हाँ, डायरेक्ट चला लो. बूट कर लो सीधा लाइव से. ISO तुमने चला लिया VMware में. VMware का उसका एरर ठीक. तुम एक काम करो, अपना लैपटॉप लेके अंदर चले जाओ 2 मिनट के लिए. ये सही कर रहे हो. आ जाओ ले आओ. नहीं तो तुम क्लास में बैठ जाओ, उसे दे दो, वो करके दे देगा तुम्हें. VMware फ्रेश इंस्टॉल कर देना, पूरा डिलीट मार के. ठीक है, सामान मत डिलीट करना भाई, सिर्फ VMware. ठीक है, देखो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको. नाउ लेट्स सी. 12:52 हुआ है. मैं आप लोगों को एक 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है. सिर्फ पानी वानी पी लो. 2 घंटे हो गए ना, कन्फिगरेशन और थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है. अब फन पार्ट विल स्टार्ट. ओके, चलो, वी हैव a 10 minutes break. Have some water. Those who want some chocolates, you can have it. Here chocolates are available. कौन कौन खाना चाहता है बताओ. 5 लोग आ जाओ. बस यार, इतने सारे क्या, ले लो. अभी मैं सिर्फ आगे वाले 5 को दूंगा और दे देता हूँ थोड़ी यार. नाराज हो गए. ये लो. कौन सी लोग ओके. कितनी बार मांग रहा दे रहा हूँ. ये लो, कौन रह गया? राइट साइड कैच इट. ये लो, उधर भी आइए. कैच शेयर. तुम डिफरेंट पार्टी हो. बैठ जाओ बैठ जाओ. पीछे वाले को भी दे दो. चलो, विल स्टार्ट द सेशन इन 10 minutes. Yes.
डिपेंड करता है हम कौन सी सेटअप करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डिसेबल करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ नेटएसएच फायरवॉल सेट ऑफ मोड डिसेबल। इसका मतलब है यूज़ नेट शेल, गो टू फायरवॉल, सेट ऑपरेशनल मोड ऑफ द फायरवॉल एज डिसेबल। ये सिंपल कमांड है। एंड इफ़ यू वांट टू इनेबल इट, इनेबल फायरवॉल वाया CMD, you can use the same command netsh firewall set of mode enable. Private and हाँ, what it will do, this will go with the public option, public disable करेगा। बिकॉज वॉट वी डू प्रॉपरली कि हम VMware का कॉन्सेप्ट नहीं, हम तो नेटवर्किंग जो यूज़ करें फायरवॉल है, इट इज़ फॉर द प्राइवेट नेटवर्क्स प्रॉपरली। तो बाई डिफ़ॉल्ट इफ़ आई डू नॉट स्पेसिफाई एनी ऑप्शन हियर, इट विल डिसेबल माई पब्लिक फायरवॉल एंड इनेबल माई पब्लिक फायरवॉल। इन केस अगर मुझे प्राइवेट के लिए करना है तो आई कैन स्पेसिफाई द ऑप्शन हियर और आई कैन गो टू द firewall.cpl एंड आई कैन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करके वी कैन डिसेबल इट। लिनक्स में भी होती है, IP टेबल्स होते हैं लिनक्स में। यूजिंग IP टेबल्स भी अलाउ एंड डिसअलाउ कनेक्शन। ये बताऊंगा मैं, कल बताऊँ सिक्योरिटी जब हम करेंगे। मैंने कस्टमाइजेशन में बस अपना फाइल सिस्टम डाल दिया और ग्राफिक्स से थोड़े से ऑप्शन वॉलपेपर्स। हाँ, माई टूल किट फाइल्स आर अवेलेबल द विच ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द रूट फोल्डर।
अरे रजनीश, कपड़ा ले आया अच्छा है। सब लोगों के सिस्टम्स रेडी हो गए, जिन लोगों के नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करेंगे चीज़ों को। All the materials for the workshop will be available here inside hackveda.in/workshop. उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है एथिकल हैकिंग वर्कशॉप, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सेस करना है, क्लिक ओवर इट एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ डायरेक्टरी। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, दिस विल बी रिमूव्ड एंड यू विल हैव अ डायरेक्टरी जहाँ पे आपका सारा फाइल्स अवेलेबल होगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगी सब हम यहाँ पे